Hi everyone, you're welcome to my Professor Note. This is Bhupesh. In this video, I'll tell you that how did I score 220 marks in my UGC NET English Literature exam. You can check out my scorecard on my Telegram channel, which is the My Professor Note UGC NET English. And I also provide here on this platform the free classes, exam-oriented study material, and a mentorship program. And I'm very happy to tell you that with the exam-oriented study material and the mentorship program, this time we have given a good result that you can also check out on our Telegram channel. So now let me tell you that how did I score these marks. The very first thing you have to do is you have to read the standard books. What are your standard books? For British literature, it is your William J. Long and Routledge. For theory, it is your Peter Barry. For criticism, it is your M.R. Habib. For culture studies, it is your P.K. Nair's culture study book. And for literary terms, M.H. Ibrahim Glossary of literary terms you have to read. After reading these standard books, refer to the previous year's question papers. All the question paper from 2004 to 2023 that you will also get access on our Telegram channel. Every single topic which is asked here, not the question but the topic. For example, there is a question asked on the T.S. Eliot. So not T.S. Eliot is your topic. Now there is a 4 option which covers which are based on his works. Your Murder in the Cathedral, your Wasteland, Anglican Poem, right, and your Confidential Clerk. These 4 options are given in the question, so you study them. Right, the same question will not be repeated, but these options and these topics will be repeated again and again, so you cover them. How can you cover it? One option I already gave you, thus which is the exam oriented study material and a mentorship program that I provide. Second thing you can do is go on Wikipedia, read the introduction, read the work segment, read your literary criticism segment of the writer. When it is about the work, then read its introduction, read its summary, and read the literary criticism segment if it is given in the Wikipedia page. This is how you have to cover these work from the internet. All right. So this is about the paper 2, that this is how you have to study, what should be your sources, and how you should study on internet. What are the segment you should target on Wikipedia page? It is your introduction, it is a summary, it is your work segment, and the literary criticism segment in this page of Wikipedia. After this, we have the paper 1. For paper 1, you can refer to any book which has got the highest rating on the Amazon and the Flipkart. ठीक है, इन प्लेटफॉर्म में जहां पे भी जिस भी बुक की अच्छी खासी रेटिंग है, आप वो बुक परचेज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज. ठीक है, मैंने केवीएस मैदान पढ़ी थी. ठीक है, कुछ बच्चों को वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बिकॉज ऑफ दैट लैंग्वेज, बट एज यू रीड इट वॉज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू गेट एक्वेंटेड विद दैट लैंग्वेज और आप उसे समझने लगते हैं, वो फिर आपकी कन्वर्जेशन का पार्ट बनने लगती है. ठीक है, तो वहां से बेसिक्स अपने कवर करके फिर जो है आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं जस्ट ऑफ द प्रीवियस सेशन एग्जाम, कि जैसे अभी जून में जो एग्जाम हुआ है, आप अभी दिसंबर की तैयारी कर रहे हो, तो इस जून में आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है ना, उनको आपको गो थ्रू करना है. फॉर एवरी सिंगल पेपर देयर इज अ न्यू पेपर 1, so make sure you cover all of these papers, all the concepts which are asked in these papers. So I went through the 2021 and 2022 question paper. I attempted my mock on these question papers, so the same I advise to you to do, because that is very important. यहाँ से आपके खाली बेसिक ही कवर होंगे from these books. For the rest of the things you have to rely upon the previous year's question papers. क्योंकि ये जो बुक्स है ना, चलो पेपर 1 की तो बात मान ली, वहां पे आपके थोड़े बहुत बेसिक्स कवर हो गए, पर फिर भी अगर हम पेपर 2 की बात करें तो ये जो बुक्स, जो आपकी स्टैंडर्ड बुक्स है, उससे आपको लिटरेचर का पता चलता है, आपको थ्योरीज का पता चलता है, आपको सेंट्रल आइडियाज पता चलते हैं, आपको यू एक्चुअली नो दैट व्हाट द टॉपिक और द कॉन्सेप्ट इज. बट साथ ही में ये जो बुक्स हैं, ये आपके यूजीसी नेट के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से नहीं लिखी गई हैं. ये जो आपकी बुक्स हैं, ये इंग्लिश राइटर्स ने लिखी हैं, है ना, whosoever is interested in the English literature. तो यहां से आपको अंडरस्टैंडिंग आपकी बिल्ट होती है, बट वो जो आपकी फैक्चुअल नॉलेज है, उसके लिए आपको रिलाय करना पड़ेगा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स पर ही. तो सेम चीज मैंने की. ठीक है, आपको पेपर 1 का पता चल गया, आपको पेपर 2 का पता चल गया कि आपको किस तरह से करना है. अब आती है कि कितना टाइम हमें डिवोट करना है. सो हियर वी हैव टू डिवोट अराउंड 12 आवर्स.
10 to 12 hours for the next 4 to 5 months, and when it is your last month, it exceeds 15 to 16 hours every single day, right? You have to devote that much time because here you have to do your revision now. This is your revision period, and you also have to cover all those topics that you have missed out. तो उसकी वजह से इतना टाइम आपका चला जाता है. ये बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, बट यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट. यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ इट इफ यू वांट टू क्रैक योर नेट जेआरएफ एग्जामिनेशन. इस बार जिन बच्चों ने मेरे बैच से जिन्होंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया, उनके रिजल्ट भी चेक कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है, कुछ बच्चों ने अभी भेजे हैं. तो उन्होंने उस चीज से बियॉन्ड जाके, कोई चीज थी उनकी जो इनसैशिएबल जो क्यूरियोसिटी थी, जब तक वो सेटिस्फाई नहीं हुई तब तक वो स्टडी करते हैं, है ना. एक टीचर आपको खाली गाइडेंस देगा, बट आपकी जो एक क्यूरियोसिटी होती है ना जानने की चीजों की, वो आपके अंदर होनी चाहिए. बिकॉज एट द एंड मैं बोलूं, ये नेट एग्जामिनेशन आप बोलोगे कि नेट एग्जाम से क्या होगा, इस पर मैं एक और वीडियो भी बनाऊंगा. शायद मुझे लगता है कितने ही बच्चे यहां तक पहुंचे होंगे इस वीडियो में. ठीक है, वो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो एक एलिजिबिलिटी आपके पास, एलिजिबिलिटी की वो एक क्वालिफिकेशन है. जैसे आपके पास +2 का सर्टिफिकेट है, मास्टर का सर्टिफिकेट है, आप बोलते थे कि मैं मास्टर्स कर दूंगा, ऐसा हो जाऊंगा. आपसे कोई आज पूछे दैट व्हाट हैव यू डन आफ्टर क्वालिफाइंग योर मास्टर्स, कुछ चीज बदली है? आप एक और एग्जाम की वेट में हो, आप एक और सर्टिफिकेट लेने की वेट में हो. कौन सा है वो है नेट का सर्टिफिकेट. कि जब नेट का सर्टिफिकेट आ जाएगा तब मुझे जॉब मिलेगी, उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है मैं अप्लाई कर सकता हूँ जॉब्स के लिए कॉलेजेस में. ठीक है, तो सर क्या श्योरिटी है? श्योरिटी है आपका स्किल. इफ यू हैव अ गुड कमांड ऑन इंग्लिश लैंग्वेज, यू कैन राइट वेल, यू कैन स्पीक वेल, यू कैन रीड वेल, दिस जॉब इज फॉर यू. ठीक है, जो जॉब है वो स्किल पे डिपेंड करती है. जो इस एग्जाम को क्रैक करने से तो आपको खाली एक सर्टिफिकेट ही मिलेगा ना, आपके पास एक क्वालिफिकेशन आएगी, बट जो जॉब है वो तो स्किल से आएगी. एंड फॉर दैट यू हैव टू डू मच मोर hard work. You have to read a lot more than you will read for this exam. ठीक है, उससे कहीं ज्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आपको बिल्कुल अपने कोर को स्ट्रेंथ करना पड़ेगा. ठीक है, लैंग्वेज पे पकड़ बनानी पड़ेगी, रीडिंग एक्सटेंसिव करनी पड़ेगी, राइट चीजों को करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और मिल बांट के करेंगे. आई विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स. इफ यू वांट, आई एम देयर. So to get access to any of the mentorship programs and the exam oriented study material, बाकी free classes I'll be uploading here. For that you can contact me on the given numbers. ठीक है, ऑलमोस्ट हर एक चीज मैंने आपको बता दी कि पेपर 2 को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, पेपर 1 में क्या कवर करना है, क्या नहीं करना है. ठीक है, what to read, what not to read, ये भी एक क्वेश्चन है. तो उसमें तो यही है कि जो आपसे टॉपिक पूछे जा रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पे, आप उन्हीं को रेफर करो, आप उन्हीं को स्टडी करो, उसके अलावा आप कुछ मत पढ़ो. ठीक है, तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अवेल है, आपके पास इंटरनेट भी है, आप जब चाहे जैसे चाहे उस तरह से प्रेपरेशन आप अपनी कर सकते हैं. एंड आई हैव क्रिएटेड दिस न्यू चैनल. एक्चुअली जो मेरा जो प्रीवियस चैनल था उस पर थोड़ा टेक्निकल इशू हुआ, सो दैट्स व्हाई आई हैड टू स्टार्ट दिस न्यू चैनल. सो गिव योर लव एंड सपोर्ट सो आई कैन सर्वाइव दिस मैराथन. I will keep bringing the good content which will help you in your journey to crack your English literature competitive exams. Very soon I'll be back with another relevant video. Till then time, this is Bhupesh Sharma signing off.